Good morning and welcome, students. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourselves. So, first of all, beta, belated Happy Independence Day. So, before I'm going to take a class or start the class, I'm just share with you a very basic instructions. First of all, बच्चे, set up an all educate learning environment. दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लासेस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको आपके पढ़ने से पहले एक लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है. एंड सेकेंड थिंग, हैव यू कम्युनिकेट रेगुलरली. आप रेगुलरली क्लासेस लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए टीचर से. इफ़ यू हैविंग इश्यूज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, किसी पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, सो यू कैन आस्क विद योर टीचर. ओके. एंड इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको किसी वर्ड में पर्टिकुलर इशू है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी. आप डिक्शनरी यूज़ कीजिए. थर्ड थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू टू टाइमली कंप्लीट योर असाइनमेंट्स और होमवर्क. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको आपका काम कंप्लीट करना है टाइम पे, एज वेल एज इन योर नोटबुक ऑल्सो. एंड बेसिकली आपको लर्निंग प्रोसेस भी साथ साथ रखनी है. सो नाउ वी आर स्टार्ट द चैप्टर नंबर 18. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज गवर्नमेंट इन इंडिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? टेल मी. गवर्नमेंट इन इंडिया. दिस इज द चैप्टर नंबर 18. सो बेटा, before we will read about this chapter, in this chapter we will read this, the need for a constitution. Constitution क्या होता है and what is the need of this constitution. Second, the central government, Lok Sabha and Rajya Sabha, the President of India, the state government and judicial system of India. What is the last point? The judicial system of India. So beta, before we will start the chapter, you just like a school is a government by a principal, teacher and management. Our country is governed by the elected government. सबसे पहले बेटा we can discuss this, what is a government. government है क्या? Have you heard about word before this? आपने अपने आस पास अराउंड में ये सुना होगा कि गवर्नमेंट, एक वर्ड सुना होगा गवर्नमेंट. इफ़ रोड हैज़ पिट and holes, people say government did not repair it. ओके. आप देखते हो आपके आसपास में रोड्स कैसे हैं, टूटे हुए हैं, तो यू कैन से दैट गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही. एंड व्हेन द पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड द पावर गोज ऑफ एंड दे सेड गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड इनफ electricity. When there is too much heat or too much cold, your teachers say, what say? The government has announced the school will remain closed. The person or a group of person who make the rules also ensure that rules are followed by properly. It's known as government. Basically beta, in this chapter we shall study about the government. To understand what is the government, we can see the first examples. Basically, you can come to school, there is a several school rules and there is a need to be followed in a school, like timings, like uniform, like timetable, books, diary, etc. This may be informed to you by the teacher, but rules were made by who? Rules कौन बनाता है हमारे स्कूल में? Rules making by someone else. Even the teacher is required to come to school by same timing, but it's not just like a making rules. Teachers क्या है? Teachers भी आप ही की तरह टाइम पर आते हैं, but rules क्या है? Rules कोई और बनाता है. So इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए we can start the chapter 18. So beta, you study about how India's got independence. When we will celebrate the Independence Day? Yes, on 15th August 1947. In this previous chapter,
आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? ऑन 15 अगस्त, हमने जस्ट परसों ही सेलिब्रेट किया है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट, द foremost वर्क बिफोर द लीडरशिप ऑफ इंडिया was make a constitution. टेल मी बेटा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मुझे पहले ये बताइए। बेसिकली दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक ऑफ रूल्स विच एक्ट अ गाइडलाइन फॉर अ कंट्री। बेसिकली दिस इज़ द बुक ऑफ रूल्स। इसमें ईच एंड एवरी रूल्स वर रिटन कि हाउ पीपल आर वर्किंग, हाउ गवर्नमेंट हैज़ वर्कड, कैसे जुडिशरी सिस्टम होगा, ईच एंड एवरी रूल वर फॉलोड बाय द पीपल। दीज आर written in this book. This is the Constitution of India. Basically this is the book. Okay, so for a country, according to the country was to be governed. Many great scholars and leaders like Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Rajendra Prasad. Have you listened these two names? डेफिनेटली यस, आपने सुने होंगे ये नाम। प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड मैनी मोर पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इसमें अभी रिटर्न नहीं है। दे मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन मीन्स ये लिखा हुआ है। रिटन डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट गवर्नमेंट एंड डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हाउ द गवर्नमेंट इज वर्क एंड रन। इट लिस्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेटा इस कंट्री में, इन इंडिया, देयर इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. So and around something 400 people make our constitution. सब 400 अराउंड समथिंग 400 पीपल्स ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. बट इसके मेन लीडर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950. कुछ ये वर्ड पढ़ के आपको कुछ समझ आया? 26 जनवरी इट मीन्स रिपब्लिक डे. ओके, ऑन दैट रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट हुआ और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया, यानी कि लागू किया. टुडे इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज. बेटा आपकी बुक में 9 लिखा होगा, आप उसे कट करके 8 यूनियन टेरेटरीज करेंगे. गॉट इट? सो in India, how many states are there? 20 states and 8 union territories. The total population of a country is more than 130 crore. बेटा मैंने इसमें ब्रैकेट करके लिखा हुआ है. अभी 2018 में जो सर्वे हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज़ अ 135.26 करोड़ people are in our country. Okay, total population is this. So Constitution of India provide 2 levels of government. How Constitution of India, how many levels of government is there? One is a central government or a union government and other is a state government. See this. This is the beta this pie chart, this graph you can also made in your notebook. आप after the keywords करने के बाद ये वाला पाई चार्ट आप बनाएंगे. Levels of government, that is a central government and one of the state government. ठीक है? Level of government, one is repeating with me, central government and the second one is state government. Okay? Central government and another one is state government. Okay, so basically beta central government make look after the whole country. Central government क्या करती है? पूरी countries के issues को देखती है. Okay, what is the work of the basically central government? Central government basically
see whole the country, and law making body of government is called a parliament. Okay, so central government looks after the whole country and state government look after the only state. Central government looks after the whole country and state government look after the only a state. ओके, खाली सिर्फ ये स्टेट में देखती है और वो पूरे इंडिया में देखती है, यानी कि पूरे कंट्री में देखती है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल कंट्री एंड द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट. जहाँ पर सारे लॉज बनते हैं, सारे गवर्नमेंट उसको लॉ बनाती है, दैट इज़ अ पार्लियामेंट. हैव यू सीन दिस पिक्चर अर्लियर? देखिए आपने पहले, दिस इज द पार्लियामेंट हाउस. ओके, इट इज लोकेटेड इन वेयर? कहाँ देखा है आपने इसे? यस, इट इज अ कैपिटल ऑफ अवर कंट्री, दैट इज अ न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये. इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस. बेटा इसी के अंदर देयर इज अ 2 हाउसेस, वन ऑफ द लोकसभा एंड अनदर वन इज अ राज्यसभा. Okay, there another one is the Lok Sabha and another one is the Rajya Sabha. So beta, to understand this chapter it is very important to watch the video. बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए वीडियोस को देखना. If you doesn't understand the video, you can see is you can watch this video twice, thrice. ये आप कितनी भी बार देखिए. इट इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो, 10 to 12 मिनट्स की है, तो बेटा आप इसे ज़रूर देखिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस कीवर्ड्स यू कैन ऑल्सो डू इन योर नोटबुक. ये कीवर्ड्स भी आप अपने नोटबुक में करेंगे विद द प्रॉपर हैंड राइटिंग और बोल के. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ में लर्न करते रहें. ओके, दीज आर द 4 कीवर्ड्स यू कैन डू इन योर नोटबुक. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.